Hello friends, how are you all? I hope you all are fit, fine and preparing very well. Great news for all of you. ASRB has released combined notification for National Eligibility Test NET, Agriculture Research Service ARS, Subject Matter Specialist SMS and Senior Technical Officer STO. A combined notification has come. It has been uploaded into the website of ASRB. You can go into the website of ASRB and download this notification. So today's video is based on these information and it's going to be very special. We will discuss four important parts of this notification. The first, we will understand about what is NET, what is ARS and what kind of post ARS is. ये कैसी सर्विस है, इसमें पे पैकेज क्या है, वर्क क्या होता है और एसएमएस क्या होता है, इसका पे पैकेज क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है, एसटीओ क्या होता है, पे पैकेज क्या है एंड वर्क प्रोफाइल क्या है, ये हम समझेंगे. देन सेकेंड पार्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्लान, द पैटर्न ऑफ नेट, ARS, STO and SMS. The third part of this video is going to be very special and this will be very helpful for students all the disciplines across in agriculture. So this video is helpful not only social science student but also helpful for all the students who are doing MSc and PhD in all disciplines of agriculture. So we will discuss in the third part of the video how to prepare, what should be your strategy to qualify NET exam, to qualify ARS pre and to qualify ARS, STO and SMS mains exam. So we will look into the plan, pattern of the examination, we will look into the work profile and that post and the features of those posts which are advertised, and we will look into the strategy, complete strategy, how to prepare well for pre-exam, how to prepare well for the mains exam. So let's get started. So first of all, let us look the important dates. They have given the online application will start from 22nd April 2025 and the last date is 21st May 2025. So you are getting a good amount of time. So I suggest you should prepare and you should fill the form well in advance in time. Then the pre-exam which is common for NET, ARS, STO, SMS. From all these four exams will have one pre that is 2nd to 4th September 2025. So it is in the first week of the September 2025. So from this exam only they will qualify you for the NET. They will do the screening for ARS and STO and SMS mains examination, right? Then the mains examination for ARS, SMS and STO will be held on 7th December 2025. So you have a good time for preparation, you have a good time for revision. ओके सो आगे जब हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो हम बताएंगे कि हाउ यू कैन डिवाइड दिस होल टाइम इनटू यूनिट्स एंड हाउ यू कैन यूटिलाइज दिस अवेलेबल टाइम विद यू. Okay, so when you are applying, so if you have qualified NET, so you can apply only for ARS, SMS and STO. If you have not qualified for NET, so you can apply for NET, ARS, SMS, STO. So any combination of these four exams you can apply. It is clearly mentioned in the notification. So accordingly you have to fill the fees and accordingly you have to select the option for which exam you are applying. For example, those who are appearing into MSc, so those who have not given NET exam, so they can fill for NET as well as ARS, for SMS and STO, provided there is a cutoff date by which they have to complete their MSc degree program. Okay. So let us look one by one. So first of all, let us look NET, NET, National Eligibility Test. As you all know, National Eligibility Test is the qualifying examination for determining eligibility for lecturer, assistant professor in the state agriculture universities and other agriculture universities. It means अगर आप NET qualify कर लेते हैं, जो कट ऑफ दिया है मैं बताऊंगा आपको जब हम NET की चर्चा करेंगे, उस कट ऑफ को पार कर लेते हैं तो आपको NET का सर्टिफिकेट इशू होता है ICAR से, जो आपको प्रमाणित करता है कि आप कृषि विश्वविद्यालय में सह प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए काबिल हैं, एलिजिबल हैं. सो दिस इज नेट. इसमें जस्ट आपको उतना कट ऑफ को क्लियर करना है जो आपकी कैटेगरी का कट ऑफ निर्धारित किया गया है. वो कट ऑफ क्या है आने वाले अभी वीडियो में हम आगे देखेंगे. Then second is Agricultural Research Service. This is the flagship research service of ICAR and we all scientists are from this service. You have to qualify the pre, then you have to qualify the mains and then you have to qualify the
इंटरव्यू। सो प्री का नंबर नहीं जुड़ता, प्री इज जस्ट फॉर क्वालिफाइंग। मेंस का 300 मार्क्स का जो है उसका मार्क्स जुड़ेगा एंड 45 मार्क्स का जो इंटरव्यू है उसका मार्क्स जुड़ेगा एंड देन मेरिट बनेगी। दिस टाइम अ वेरी गुड नंबर ऑफ सीट हैज कम, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। सो व्हाट इज ARS, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, है ना। और ये जो सर्विस है ये फ्लैगशिप सर्विस है ICAR की, एंड यू आर गेटिंग अ डेजिग्नेशन ऑफ साइंटिस्ट, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट इन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये जो एंट्री होती है साइंटिस्ट की, ये 10th लेवल पे होती है, लेवल 10, यानी 7th पे कमीशन को अगर आप देखेंगे चार्ट को, लेवल 10 यानी ऑफिसर स्केल में इसकी एंट्री होती है। द पे लेवल इज 57,700 टू 1,82,400। लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर सैलरी क्या होती है, बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं, तो मैं आपको हल्का सा कैलकुलेटेड ग्लिम्स दे देता हूं। 57,700 इज द एंट्री पे स्केल, यानी इफ अ न्यू साइंटिस्ट जॉइन द डिवीजन, सो 57,700 इज द पे स्केल, प्लस 50% of 57,700 will be the DA, plus the city where you are posted, tier 1, tier 2, tier 3, depends on that, the HRA. The plus, for example, in Delhi, 30% of 57,700 will be HRA, plus transport allowance. So if you add these 4 columns, the gross salary will cross 1 lakh rupees. 1 lakh से ज्यादा ही ये निकल जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। So it's a very good amount of salary. And जब आप साइंटिस्ट बन जाते हैं, then you after 4 years, if you are with PhD और with MSc, then 5 years, तो आप साइंटिस्ट सीनियर स्किल बन जाते हैं, यानी लेवल 11 पे आ जाते हैं। देन उसके 5 साल बाद आप लेवल 12 पे आ जाते हैं, देन लेवल 13 पे 3 साल के बाद आते हैं, लेवल 14 पे आ जाते हैं। तो आपका साइंटिस्ट, देन सीनियर साइंटिस्ट, देन प्रिंसिपल साइंटिस्ट तक प्रमोशन होते चले जाते हैं और आपका पे स्केल बढ़ता चला जाता है। एंड एवरी ईयर यू गेट अ 3% इंक्रीमेंट जो हर साल हमें लगता है। सो अ वेरी गुड पे पैकेज एंड वेरी गुड ऑफिसर कैडर सर्विस। और काम क्या होता है? 3 mandates of ICAR, that is research. First, you will be involved into the different research project going in your division where you will be posted. वहां करेंगे आप, अपने externally funded projects भी लेके आ सकते हैं as a scientist। तो आप साइंस का काम करेंगे, developing varieties if you belong to genetics and plant breeding, developing of different type of technologies if you belong to other disciplines, in social science, development of innovative models, development of innovative technologies, disseminating those technologies to the farmers, demonstration, सभी काम आता है। ये पूरी ट्रेनिंग होती है when you join NAM। आफ्टर गेटिंग ARS यू विल ज्वाइन नाम हैदराबाद। सो वहां 3 months का पूरा ये ट्रेनिंग सिखाते हैं कि कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे टीचिंग, इफ यू आर पोस्टेड इन दोज ICAR इंस्टीट्यूट वेयर टीचिंग, फॉर एग्जांपल IRI, वी आर सर्विंग एट IRI, सो वी हैव अ टीचिंग and we teach UG student, PG student, PhD student. So teaching is also a mandate. Then extension, taking technologies to the farmers, demonstration, refinement, assessment, testing, that is also a part of this area. So it's a very creative post. You get to learn, you develop new technologies for farmers, और आप हमेशा एक creative word में रहते हैं, teaching, research, extension में रहते हैं, right? So this is the flagship program. This is the main post in this notification, and I must suggest you कि आप aspire जो स्टूडेंट कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, सबसे पहले कोशिश कीजिए, इतनी अच्छी तैयारी कीजिए कि ARS में आपका नंबर आ जाए, ARS में आप सेलेक्ट हो जाए, राइट। इसका पैटर्न क्या है, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी, वी विल लुक इनटू द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो आप समझ गए व्हाट इज ARS। देन अब हम आते हैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, यू नो वी हैव मोर देन 730 KVKs इन अवर कंट्री एंड वन डिस्ट्रिक्ट वी हैव एटलीस्ट 1 KVK। उन KVKs में सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होता है डिफरेंट डिसिप्लिन का। आप ब्रोचर देखेंगे जब डाउनलोड करेंगे नोटिफिकेशन, यू विल फाइंड देयर इज एन एनेक्सर एट द एंड। वहां आपको ये सारी पोस्ट जो 41 पोस्ट हैं वो लिखी गई हैं किस डिसिप्लिन में सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है, यानी आप उस डिसिप्लिन के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए कंप्लीट करेंगे तो आपको कृषि विज्ञान केंद्र में पोस्टिंग मिलेगी और आप वहां सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होंगे। ऐसे ही सीनियर टेक्निकल ऑफिसर का जो पोस्ट है, ICAR हैज डिफरेंट इंस्टीट्यूट, दिस इंस्टीट्यूट हैज डिफरेंट डिविजन्स एंड दीज डिविजन्स हैव टेक्निकल ऑफिसर्स टू असिस्ट साइंटिस्ट। तो जब एंट्री लेवल पे टेक्निकल होते हैं T1, देन दे प्रोमोटेड एंड गोज अप टू T6। ये सीधे एंट्री आपकी हो रही है T6 पे, यानी सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। आपका काम अगेन रिसर्च, टीचिंग, इन सब में हेल्प करना, साइंटिस्ट के साथ मिलकर काम करना, यही काम एंड अदर प्रोफाइल वर्क भी रहेंगे। तो अगेन आप देखेंगे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, दोनों का ही ग्रेड पे अगेन 7th सेंट्रल पे कमीशन CPC के हिसाब से अगेन लेवल 10 पे है। पे बैंड में थोड़ा ARS से अंतर है, 56,100 to 1,77,500। इट मीन्स अगेन 56,100 प्लस 50% DA एंड देन
HRA देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस आप जोड़ेंगे तो अगेन इट विल अगेन गो अराउंड 1 लाख और 1 लाख से ज्यादा ये चला जाएगा. सो अगेन इट्स अ लेवल 10 की पोस्ट है. सो बोथ SMS एंड STO आर आल्सो वेरी गुड पोस्ट ऑफ लेवल 10 इन सेंट्रल पे कमीशन, 7th सेंट्रल पे कमीशन. ठीक है. सो ARS के बारे में हमने जान लिया, SMS के बारे में जान लिया, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के बारे में जान लिया, नेट के बारे में जान लिया, जो 4 पोस्ट इसमें निकली हुई हैं. और अब हम देखते हैं कि हाउ यू हैव टू अप्लाई, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड, व्हाट इज द पैटर्न, व्हाट आर द टाइप ऑफ एग्जाम फॉर नेट, ARS, SMS एंड STO. चारों का हम एक एक करके देखेंगे. एंड दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक and share the videos to get these type of enriching and motivating content, academic content. So let's get started. So first of all, look how to apply. A candidate seeking admission to the examination must apply from the website, that is www.asrb.org.in. How to fill this application? They have given in instructions in Annexure 1, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. Important is the candidate are not required to attach any copy of any document certificate in support of their candidature at the time of submission of online application. So online जब आप application करना है तो केवल application submit करना है, उसके साथ कोई भी document नहीं लगाना है. However, they are saying that you should fulfill the eligibility. Okay, so important notes देख लेते हैं. आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है. No other mode is allowed. ठीक है. So you has to be said whether you want to be considered for net only or ARS only or SMS only or STO only. ठीक है. Apart from net, if a candidate opts for any combination of ARS, SMS, STO, T6, then he must indicate the order of preference in descending order. It means net के अलावा आप ARS, SMS और STO जो अप्लाई कर रहे हैं वो कैसे आप सिलेक्शन चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट फर्स्ट एज एन ARS, so I will give my choice ARS as the first ARS, then followed by SMS, then followed by STO. Okay, so this is my order of preference which I have to indicate in descending order. Candidate must ensure they fulfill all the eligibility. ठीक है, ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है. राइट. द कैंडिडेचर आर नॉट रिक्वायर्ड टू अटैच एनी डॉक्यूमेंट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया. इन केस वेयर एनी सर्टिफिकेट जो आप भी लगाएंगे, जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाएंगे, दे हैज टू बी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द formats which they have given in the appendixes. So they have given all the formats from appendix 1 to 5th. So these all the certificate has to be in that format only. So first we come to the national eligibility test. As I already told you, this is an exam to make you eligible for lecturer, assistant professor in state agriculture universities. And then now let's see the age limit. The age limit is minimum 21 years as on 1 January 2025, and there is no upper age limit. But the eligibility is master's degree. You should have completed MSc degree, and in which degree subject you have to complete. All the list has been given in Annexure 6. So in Annexure 6, you please see whether your MSc is in that discipline or not, and you are eligible or not, or completed, and that MSc should be completed on or before 30th September 2025. So 30 सितंबर का इन्होंने कट ऑफ डेट दिया है. So 30 सितंबर 2025 से पहले आपको MSc कंप्लीट करना है. सो दोज हु आर अपेयरिंग इनटू MSc सेकेंड ईयर एग्जाम, for them it is very important to complete their thesis on time, to have their viva voice on before 30 September 2025 to get the PDC, so that they are eligible. So 30 September 2025 date hai. So this is February, March, April, May, June, July, August, September. So good amount of time. So please hurry up. Please collect your data, please analyze your data, please write thesis, please prepare so that you are eligible for this golden opportunity on before 30th September 2025. Okay, so now let's see the plan of examination of the NET. It will be of one paper only, 150 marks and 2 hours. ठीक है, and each query 1 mark, so a total of 150 marks question. So you have to just clear the cutoff for NET. So it means if you belong to unreserved category, general category, so 50% marks you have to secure. So if out of 150, if you secure 75 marks, so net आपको मिल जाएगा. Just ये qualifying में है. If you belong to economically weaker section and OBC, then 45% of the marks. If SC, ST and physically challenged, then 40% of the marks. So this is the cutoff.
ये कट ऑफ आपने क्लियर कर लिया जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं, सो आपको नेट मिल जाएगा, यानी यू विल बी एलिजिबल फॉर बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। बट 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। इफ यू गिव रॉन्ग आंसर तो 1/3 कटेगा, तो एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया जा सकता है। एंड आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो हाउ टू मिनिमाइज योर नेगेटिव मार्किंग, हाउ टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव। आई हैव गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रिफर टू दैट सो दैट you can have an idea how to solve objective effectively. Important here to note is this is the exam, pre-exam जो होगा इसी से ARS का भी कट ऑफ होगा, इसी से SMS, STO और नेट का भी होगा, तो एक ही एग्जाम होगा। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है सो दैट यू परफॉर्म वेल इन दिस एग्जामिनेशन। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है, कौन से सब्जेक्ट में कौन सी डिग्री आपकी एलिजिबिलिटी है, इट इज गिवन इन एनेक्सर 6 पेज नंबर 18 to 22। आप अच्छे से वहां पर से अपनी एलिजिबिलिटी इस एनेक्सर से देख लीजिए। Now coming to the second exam, Agriculture Research Service, as I have already told, ये सब मैंने आपको बता दिया, पे लेवल 10, this is the pay level, ये मैंने बता दिया। So important is the pattern is you have to first give the pre-exam, the same for net जो आप दे रहे हैं, ये qualifying nature का है, यानी इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा। Second, you have to give the main exams of ARS 2025 of 300 marks, then personal interview of 45 marks। Plan of examination उन्होंने Annexure 8 में दिया हुआ है, वैकेंसीज उन्होंने Annexure 9 में दी है। वैकेंसीज में अभी आपको दिखाऊंगा, very good vacancies this time has come। In the last 10 years, I have not seen such a good number of seats in ARS. The age limit क्या है? Minimum age again like net 21 years and maximum is 32 years as of 1 August 2025. This is important to note, but there are certain exceptions. For example, if you belong to SC and ST, 5-year relaxation is there. 3 years relaxation if you belong to non-creamy of OBC. Okay, then physically challenged, so they have given a relaxation of 10 years. Okay, the upper age limit for the candidate holding PhD degree will be relaxable by a further period of 3 years. If you are holding a PhD degree or if you are going to complete your PhD degree by 30th September 2025, which is the cut-off date, तो आपको 3 years अतिरिक्त मिल जाते हैं। So आप इनमें 3 years और जोड़ सकते हैं। So your maximum age क्या हो जाएगी? 35 years हो जाएगी। ओके, टिल 1 अगस्त 2025। सो ये नोटिफिकेशन का पेज अच्छे से पढ़ लीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया था, अर्लियर इट वाज पीएचडी, नाउ इट्स मास्टर्स। सो इफ यू आर एमएससी डिग्री होल्डर डूइंग पीएचडी और एमएससी डिग्री कंप्लीटेड, सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। दोज हु आर अप्लाइंग अपेयरिंग, इट मींस दोज हु आर गोइंग टू कंप्लीट देयर मास्टर डिग्री, दोज हु आर गोइंग टू सबमिट देयर थीसिस, एमएससी थीसिस, सो दे हैव टू कंप्लीट देयर degree before 30th September 2025. This is the important point which they have to note. तो आपको अपना सारा कार्य थीसिस का और अपना वाइवा वर्सी एंड पीडीसी से पहले आपको ले लेनी चाहिए. So this is important to note. So pre exam again the same like ARS, the same exam, सेम एग्जाम से ही, उसी एग्जाम से आपका इन चारों का कट ऑफ क्लियर होगा. सो 150 मार्क्स का होगा 2 आवर्स का, देन मेंस आपका होगा 300 मार्क्स का 3 आवर्स का, देन पर्सनल इंटरव्यू होगा 45 मार्क्स का. प्री एग्जाम अगेन 1 पेपर ऑफ 150 मार्क्स, द सेम पेपर द नेट के लिए जो आप अप्लाई किया है उसी पेपर से आपका नेट और चारों एग्जाम का कट ऑफ होगा. 2 आवर्स का होगा. 1/3 मार्क्स इसमें से आपका रॉन्ग आंसर देने के लिए 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा और आपकी नो राउंडिंग, कोई राउंडिंग नहीं होगी. राइट, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने तो 50%, इफ यू बिलोंग टू अनरिजर्व कैटेगरी 50% था ना कट ऑफ, तो 50% कर लिया तो आपको नेट मिल गया. लेकिन यहां पर क्या है, फॉर एआरएस के मेंस के लिए आपको सेलेक्ट होने के लिए ये आपका मेरिट बनाएंगे. सो दे विल सेलेक्ट द स्टूडेंट इन 1:15 कैटेगरी वाइज फॉर ईच पोस्ट. ठीक है, हर एक पोस्ट पे एट द रेशियो ऑफ 1:15. सो फॉर ईच पोस्ट 15 स्टूडेंट को ये लेंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर 10 पोस्ट, सो 150 स्टूडेंट विल राइट द मेंस एग्जामिनेशन इन दैट कैटेगरी. ओके, सो ये यहां पर क्लियर कट है. सो इट्स नॉट अ कट ऑफ डेट बट इट इज रिलेटिव. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन मिनिमम मार्क्स आपको रखना है तभी आप इस रेस में रहेंगे. सो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स क्या है अनरिजर्व के लिए 45%. सो ऑब्वियसली 50% से ऊपर होने पे नेट मिल रहा है तो 45% तो मिनिमम हमें लाना ही लाना है. तो 45% से भी कम अगर आपके आ रहे हैं तो आप कहीं पर भी नहीं है, किसी रेस में नहीं है. सो 45% इफ यू बिलोंग टू अनरिजर्व कैटेगरी, इफ यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस ओबीसी इट इज 40%, इफ यू बिलोंग टू एससी एसटी एंड फिजिकली चैलेंज इट इज 35%. सो मिनिमम आपका इतना मार्क्स होना ही होना चाहिए. देन आपको कंसिडर करेंगे इस रेशियो के लिए 1:15 के लिए मेरिट बनेगी और फिर मेंस के लिए आपको लेटर मिलेगी. फिर जब मेंस होगा तो मेंस विल बी ऑफ 300 मार्क्स.
25 क्वेश्चंस विल बी 5 मार्क्स ईच और 50 वर्ड्स पे आपको आंसर देना है। हाउएवर थोड़ा सा जो पेज मिलता है उसमें जो गैप मिलता है उसमें हम थोड़ा सा ज्यादा शब्द भी लिख सकते हैं। इट नॉट अबाउट ऑलवेज द अबाउट ऑफ वर्ड्स यू आर राइटिंग, इट अबाउट द क्वालिटी ऑफ कंटेंट यू आर राइटिंग, हाउ यू आर राइटिंग, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू आर राइटिंग एंड इन विच वे यू आर राइटिंग, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो 25 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। सो आप देख सकते हैं कितना लेंथी ये पेपर होने वाला है। सो इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग राइटिंग, इफ यू आर नॉट मेकिंग नोट्स, तो केवल किताब ही पढ़ते जा रहे हैं, सो वहां पर आपका हाथ उस स्पीड से नहीं चल पाता और आप उतनी स्पीड से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, आप एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं लिख पाते। सो प्लीज प्रैक्टिस राइटिंग स्किल्स बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द मेंस विच इज गोइंग टू काउंट। मैं आगे स्ट्रेटेजी में भी बताऊंगा। तो मेंस लिखने के बाद ये पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे 1:3 पे। फॉर सपोज इफ दे आर 10 सीट्स सो दे विल कॉस्ट 30 स्टूडेंट्स। सो फॉर 1 सीट में 3 स्टूडेंट को कैटेगरी वाइज ये आपको बुलाएंगे। सो दिस इज प्री एंड मेंस इन ARS इज रिलेटिव। Okay, then personal interview, I have made a separate video for personal interview. The link is in the description box. So you can see personal interview में आपका suitability for the service देखेंगे, आपका attitude check करेंगे, आपका knowledge check करेंगे and positive attitude और promptness, research aptitude ये सब कुछ check होगा। इसका भी मैंने एक separate video बताया है जो मेरे चैनल में है। ओके, क्रिटिकल पावर्स देखेंगे, सिमुलेशन की, बैलेंस ऑफ जजमेंट देखेंगे, अलर्टनेस देखेंगे। 45 मार्क्स का है एंड इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बहुत लोगों का मेंस में बहुत अच्छा नंबर आता है लेकिन इंटरव्यू में बहुत पीछे हो जाते हैं। सो एक बैलेंस बनाना है सो दैट वी परफॉर्म गुड इन मेंस ऑल्सो एंड इन interview also. Okay, the syllabus of the ARS examination, it has been revised accordingly to the MSc and you can download the syllabus from www.asrb.org.in. Okay, so these are the vacancies you can see. A very good vacancy. For example, agriculture entomology 22. ठीक है, microbiology 8, economic botany 12. You can see in every department they have a very good number of seat. कहीं कहीं कम है पर कहीं कहीं बहुत ज्यादा है. For example, plant pathology you see 20, very good number. Genetics and plant breeding 24, fruit science 20. ठीक है, vegetable science 12. You can see animal genetics and breeding 18, animal nutrition 20. You can see all these vacancies has come. For example, veterinary microbiology 10. है ना, तो अच्छा सीट्स आया ओवरऑल अगर हम देखें. फॉर एग्जांपल इफ आई स्पेशली टॉक अबाउट माय सब्जेक्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, 28 सीट इन द लास्ट 10 years आई हैव नॉट सीन दिस मच ऑफ सीट. इसमें अनरिजर्व की ही 11 है, जितना टोटल नहीं आता था. So this is very important and very good. Agriculture statistics 14, agriculture economics 18, very good number of seat has come up. Agriculture structure process engineering 20. सो आप अगर इस बार मेहनत करेंगे, लगन से काम करेंगे तो आपका हो सकता है टोटल 458 सीट हैज कम एंड दिस इज गिवन इन दिस एनेक्सर. ओके, सो नाउ कमिंग टू सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट SMS T6 एंड सीनियर टेक्निकल ऑफिसर. मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी पे ग्रेड क्या है, पे लेवल क्या है, क्या काम रहता है. ठीक है, अगेन बिल्कुल ARS की तरह होगा. प्री एग्जाम सेम वही एग्जाम देंगे आप, फिर मेंस एग्जाम देंगे, पर्सनल इंटरव्यू होगा. डिटेल्स इसका एनेक्सर 11th में दिया गया है. वैकेंसीज इसकी 12th एंड 13 एनेक्सर में दी गई है. एजुकेशन क्वालिटी सेम, मास्टर्स ऑन बिफोर 13 सितंबर 2025 से पहले कंप्लीट होना चाहिए. इसका सिलेबस भी कॉमन है नेट और ARS डिसिप्लिन का, यानी क्लियर कट है. आपने पूरे एक ही सिलेबस को लेकर अच्छी तैयारी करनी है. अच्छी तैयारी कर लेंगे तो आपका ARS के लिए भी तैयारी हो जाएगी, नेट के लिए भी हो जाएगी, SMS के लिए भी हो जाएगी, STO के लिए भी हो जाएगी. अगेन बिल्कुल एज लिमिट बिल्कुल उसी की तरह है सेम एंड इसमें 32 इयर्स की जगह में 35 इयर्स है. देयर इज वन एक्सेप्शन हियर. ठीक है, ARS में जब मैक्सिमम एज वाज 32, हियर द मैक्सिमम एज ऑफ 35. द एक्सेप्शंस आर सेम. 5 इयर्स फॉर SC ST को एक्सेप्शन मिला है. 3 इयर्स का ग्रांट OBC नॉन क्रीमी लेयर को मिला है. देन फिजिकली चैलेंज को 10 इयर्स का मिला है. और ICR सर्कुलर के हिसाब से जो RA SRF है उनके लिए भी यहाँ पर ये लाइन लिखी है. सो दोज हु आर इंगेज इन RA SRF एंड इंटरेस्टेड टू बिकम STO एंड SMS, सो वो ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लें. एम्प्लॉयज के लिए कोई एज लिमिट नहीं है और ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर लिखे गए हैं. अगेन द सेम पैटर्न. प्री एग्जाम होगा 150 मार्क्स का, मेंस होगा 300 मार्क्स का, सेम एग्जाम, यानी आपने सेम प्री में अपियर करना है, उसी से चारों एग्जाम का हो जाएगा. मेंस से ही आपका ARS का भी हो जाएगा, STO का भी हो जाएगा और SMS का भी हो जाएगा. इंटरव्यू फिर 45 मार्क्स का ही हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर मेरिट एंड डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस विच यू हैव फिल्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. द सेम एग्जाम प्री का वही नेट वाला 1/3 मार्क्स डिडक्ट होगा. 150 क्वेश्चन होंगे 2 आवर्स के लिए. अनरिजर्व के लिए 45% मिनिमम ये रहेगा. और अगेन द मेरिट दे विल कॉल एट द रेशियो 1:15. सेम मेंस एग्जाम ऑफ ARS यू विल गिव एंड सेम 1:3 पे ये आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे. तो सेम है, यानी बिल्कुल आप ARS की तैयारी कीजिए तो ये दोनों ऑटोमेटिकली आपके साथ
आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली होगा। तो आप ARS को लेके फोकस चलिए। सो SMS और STO अपने आप हो जाएगा। सो यू कैन सी टोटल 41 वैकेंसीज ऑफ SMS एंड टोटल 83 वैकेंसीज ऑफ STO हैज कम। दिस इज गिवन इन Excel 12 and in Excel 13. Okay, page number 39 and page number 40 of the notification. Now coming to the most important part of this video, for which you all are waiting, what should be my strategy for NET, ARS, SMS and STO? The first thing, there should be one strategy. Okay, because same paper है चारों के लिए। तो प्री के लिए जो आपका स्ट्रेटेजी होगा, सेम स्ट्रेटेजी विल वर्क फॉर नेट, सेम स्ट्रेटेजी विल वर्क फॉर ARS, SMS एंड STO। द मेंस के लिए जो आपका ARS का स्ट्रेटजी होगा, सेम स्ट्रेटजी फॉर SMS एंड STO। सो वेरी गुड सीट्स हैज कम दिस टाइम एंड अल्टीमेटली यू नीड वन सीट फॉर द सिलेक्शन। सीट्स को क्यों देखना, हम तो ये कहते हैं स्टूडेंट से कि अगर आपके डिवीजन में एक सीट भी आई और आपकी कैटेगरी की आई, आप एलिजिबल हैं, तो भी आप उसी लगन से पढ़ाई कीजिए, बिकॉज यू अल्टीमेटली नीड वन सीट। ओके, सो फर्स्ट स्टेप कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, फर्स्ट स्टेप विच आई सजेस्ट स्टूडेंट्स इज प्रिंट द सिलेबस। द सिलेबस इज अवेलेबल इन asrb.org.in। अपना सिलेबस निकाल लीजिए और अपने रूम के दीवार में उसको चिपका लीजिए, पेस्ट इन द वॉल। 5 बार कम से कम उसको पढ़ लीजिए। Why I am saying 5 times is when you read it 5 times, so you will be clear about the topics which are involved in your syllabus, because you have not only to give pre, you have to give the mains। 25 क्वेश्चन 5 मार्क्स के करने हैं, 10 क्वेश्चंस करने हैं, देन 5 क्वेश्चन 15 मार्क्स के करने हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट इफ यू रीड ईच एंड एवरी टॉपिक। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, सो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो छूट जाएगा। सो यू विल बी रिमेंबरिंग इन योर ब्रेन दैट यस दिस इज द टॉपिक विच आई एम नॉट गेटिंग, विच आई हैव नॉट कवर्ड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंट द सिलेबस, रीड इट 5 times। Now, unit wise and topic wise, list down the name of the books, manuals, materials, marks or topics. So now unit 1, unit 2, each and every unit you identify and write the topics. What are the important topics involved in this unit? What are the important books for which I have to refer for this topic? What are the important materials or what are the online sources? What are the notes from the seniors? है ना, व्हाट आर द रिसोर्सेज। हर टॉपिक का कौन कौन सी किताब से करेंगे, कौन कौन से रिसोर्स से करेंगे, क्लियर कट मैप बना लीजिए। मैं अभी आपको बताऊंगा मैप कैसे बनता है। दिस इज वेरी हेल्पफुल, ठीक है। एंड मेक श्योर दीज बुक्स आर अवेलेबल टू यू। कंसल्ट टू योर सीनियर्स एंड अरेंज ऑल मटेरियल्स। सो कम से कम मैं कहता हूं, हमेशा हम कहते हैं कि कोई भी एग्जाम से पहले, कोई भी जंग होती है तो उससे पहले अपने हथियार को धार दी जाती है, राइट। सो फॉर स्टूडेंट्स द नोट्स आर द हथियार, नोट्स आर द शस्त्र एंड अस्त्र। सो प्लीज अरेंज योर नोट्स फर्स्ट। Invest 5, 6, 7, 10 days. Arrange all books, arrange all material from your seniors, arrange all your online material. Print the syllabus, read the syllabus. हम तो 10 से 15 दिन मैंने अपने टाइम पे इसी काम पे दिए थे, केवल सिलेबस को पढ़ा था, प्रिंट किया था, सारा मटेरियल, सारी किताबें एक जगह की थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टमैटिक होना पड़ेगा। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप, यू हैव टू मेक अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मींस एक्शन, स्ट्रेटजी, पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप। मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। हर यूनिट का, ये मेरा स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूं। यूनिट एक है, यूनिट में बहुत सारे कॉमा 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 करके बहुत सारे टॉपिक्स लिखे गए हैं। आप अपने सिलेबस को देखिए, उनमें से एक अपना एक वर्ड डॉक्यूमेंट या एक अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, उसमें देखिए, लिखिए टॉपिक। सो फर्स्ट टॉपिक, शुरू की 2 लाइनें कम से कम एक टॉपिक को इंडिकेट कर रही होंगी, तो वो टॉपिक लिखिए। सेकेंड, थर्ड, so you make a 15-20 items from each unit which you will cover, टिक करते चले जाएंगे। वो एक लिस्ट बनाइए पूरी, हर यूनिट का 15 to 20 टॉपिक्स फ्रॉम ईच यूनिट। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। हमने क्या किया था, वी हैव नॉट ओनली जनरेटेड द टॉपिक्स, बट हमने क्या किया था, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट बना लिया। हर यूनिट से आने वाले संभावित प्रश्नों की सूची बना ली, सीनियर से कंसल्ट करके, जूनियर से कंसल्ट करके, अपने साथ वालों से कंसल्ट करके, टीचर से कंसल्ट करके आपको जाना पड़ेगा, डाइवर्सिटी लानी पड़ेगी और क्या क्या क्वेश्चन इस यूनिट से उठ सकते हैं, क्या क्या पहले आए हैं, बुक से देख लीजिए, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देख लीजिए और एक पूरा लिस्ट बना लीजिए, एग्जॉस्टिव लिस्ट बना लीजिए क्वेश्चन की, एक लिस्ट बना लीजिए टॉपिक की, हर यूनिट की, और उसको भी प्रिंट लेके अपने दीवार पे चिपका लीजिए या फाइल में रख लीजिए टॉपिक वाइज। अब क्या करना है, टॉपिक वाइज करने के बाद टॉपिक वाइज कैलेंडर बना लेना है। सो up now you have all the topics, you have all the questions which can come in 5 marks, in 10 marks, in 15 marks, और जो टॉपिक्स हैं उसी का डेप्थ पढ़ेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा। सो टॉपिक वाइज आपने एक कैलेंडर बना लेना है। उस कैलेंडर को कैसे बनाना है, नाउ वी विल लुक इनटू इट। सो अगर हम देखें आपका प्री एग्जाम इज ऑन 2 to 4 September, इट मींस यू हैव 6 months 180 days in your hand. Mains is on 7 December, it means you have 9 months 270 days in your hand. So you have to make a calendar of 180 days.
180 डेज में आप एक कैलेंडर बना लीजिए सो दैट 180 डेज में पूरे सिलेबस के नोट्स बन जाए, पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए। जो मेंस के 3 मंथ्स है उसमें आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको लिख लिख के याद कर सकते हैं, ठीक है। सो 180 डेज का मैप बनाइए। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, दिस इज द माय सिलेबस, माय सब्जेक्ट सिलेबस, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, द फर्स्ट यूनिट, फंडामेंटल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। सो यू कैन सी इन योर सब्जेक्ट ऑल्सो दिस टाइप ऑफ यूनिट्स आर देयर। सो आप पहले देखिए, सारा कॉमा कॉमा करके इन्होंने ये टॉपिक्स दिए हैं। तो इसको मैं क्या करूंगा, आई विल डिवाइड दिस होल पैराग्राफ इनटू 15 टॉपिक्स। मैं 15 टॉपिक्स में इसको डिवाइड कर दूंगा। अब मैं अपना कैलेंडर बनाऊंगा जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। इस तरह का कैलेंडर हम लोग बनाते थे। सो व्हाट आई विल डू, दिस यूनिट का कैलेंडर जो बनेगा, मेरा यहां पर टॉपिक होगा। इसमें मैंने लिख दिया कि डेफिनेशन ऑफ एक्सटेंशन मुझे पढ़ना है, हर तरह की फिलोसॉफी ऑफ एक्सटेंशन में क्वेश्चन आ रहा है, ये पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन मुझे पढ़ना है, टीचिंग लर्निंग का पूरा प्रोसेस मुझे याद करना है। सो सपोज दिस 4 यूनिट्स मैंने 4 टॉपिक्स मैंने आइडेंटिफाई किए। मैं इन 4 टॉपिक्स के लिए एक डेट तय कर लूंगा, 01 to 2 मार्च को मेरा इनका नोट्स कंपाइल हो जाएगा डिफरेंट बुक से। कौन कौन सी बुक मैं रेफर करूंगा, जीएल रे से देखूंगा, डायमेंशंस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन से देखूंगा, एमएससी के नोट्स से देखूंगा, सुनील वीजी एंड ऑब्जेक्टिव्स की बुक्स भी मैं इसके बनाऊंगा। और फिर आगे इसके आप अपना प्रोग्रेस। सो A4 शीट क्या मेरी डेफिनेशन ऑफ एक्सटेंशन की बन गई, नोट्स बन गया डिफरेंट बुक से, इन 2 बुक से रेफर करके क्या मेरा डेफिनेशन ऑफ एक्सटेंशन का बन गया, यस, सो आई विल टेक इट। क्या फिलोसॉफी ऑफ एक्सटेंशन का बन गया, यस। ऑब्जेक्टिव एक्सटेंशन का बन गया, यस। टीचिंग लर्निंग का हो गया। ऑब्जेक्टिव बुक से क्या मैंने इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव बना लिया, यस। इस टॉपिक का बना लिया, यस। इस ऑब्जेक्टिव का बना लिया, यस। इस ऑब्जेक्टिव बना लिया। तो यू कैन हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड व्हाट यू हैव रेड, व्हाट इज येट टू बी रेड, क्या पेंडिंग है। इस कैलेंडर की मैं बात करता हूं। सो यू मेक अ मास्टर कैलेंडर ऑफ 180 डेज का, एक एक दिन का हिसाब रखिए और उसको डिवाइड कीजिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत बनाइए, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाइए सो दैट कभी आपका थीसिस का वर्क है, कभी आपका कोई और काम है, कुछ पर्सनल काम है, तो अगर आपका शेड्यूल गड़बड़ाता है तो उसको कवर कर सकें। सो ऑलवेज वी कीप सैटरडे संडे में हमेशा फ्री रखता था सो दैट आई कैन कवर अप। अगर मंडे ट्यूसडे कुछ थीसिस का काम है या कोई और काम में फंस गए, सो मैं सैटरडे संडे को कवर अप कर सकता था। तो सैटरडे संडे आप एक्सक्लूसिवली ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग के लिए रख सकते हैं या कैलेंडर में जो आपका रह गया, मिसिंग रह गया, उसको कंप्लीट करने के लिए रख सकते हैं। सो दिस इज द स्क्रीन, दिस इज द चार्ट विच आई एम टॉकिंग ऑफ, ठीक है। नाउ रीड फ्रॉम बुक हाउ टू मेक दिस A4 शीट, प्रिपेयर A4 शीट ऑन दिस टॉपिक इन योर ओन हैंड राइटिंग। इवनिंग सॉल्व ऑब्जेक्टिव। सो हम क्या करते हैं, दिन में अपना जो भी समय होता है उसमें 3-4 नोट्स का A4 शीट का बुक से बना लिया और शाम को उस A4 शीट को 2-3 बार रिवाइज करके हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेते थे। सीधे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि प्री की तैयारी करते हैं, सोचते हैं कि 3 मंथ्स जो बीच में बाद में बीत रहे हैं, बीच में आ रहे हैं प्री और मेंस के, हम वहां मेंस की तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं हो पाता। आपको अभी से मेंस की तैयारी करनी है। मेंस की तैयारी इन डेप्थ करेंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते जाएंगे तो प्री अपने आप हो जाएगा। सो प्री इज एज ए ट्रीट प्री एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द मेंस, डोंट ट्रीट मेंस एज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्री एग्जाम। ओके, सो मेंस एग्जाम्स को लेके चलिए, अल्टीमेटली मेंस एग्जाम काउंट्स। सो ये मेरा आपको सजेशन है। 2 ग्रेट बेनिफिट होंगे नोट्स बनाने के लिए। फर्स्ट, नोट्स मेकिंग हो जाएगी एंड राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट हु हैव वेरी गुड नॉलेज बट व्हेन इट कम्स अबाउट राइटिंग आंसर्स दे आर वेरी पुअर, ठीक है। हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन, हाउ टू राइट द बॉडी, हाउ टू राइट कंक्लूजन। आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन इफेक्टिव आंसर राइटिंग। आई हैव गिवन माय एग्जांपल्स, आई हैव गिवन शोन माय शीट्स, सो दैट वीडियो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। संडे यू कैन कीप फॉर वीकली रिवीजन और थोड़ा रेस्ट लेने के लिए, थोड़ा मस्ती भी करनी है जीवन में, केवल पढ़ना ही नहीं है, थोड़ा घूमना घामना, जो भी आप आउटिंग करना चाहते हैं संडे, जस्ट फॉर ऑब्जेक्टिव्स एंड देन कीप संडे एज अ वीकली रिवीजन। सेपरेट फाइल्स ऑफ ईच यूनिट, A4 शीट बना लीजिए। सो व्हेन यू आर वॉकिंग, मेस में खाना खा लिया, सो इफ यू आर वॉकिंग ऑन रोड्स सो यू टेक दो सेपरेट सीट्स, 1-2 सीट्स पर अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करके आ गए। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज कीप ऑन अर्जिंग दैट यू शुड मेक A4 शीट। इफ यू फील नॉट इनफ A4 शीट्स, फॉर एग्जाम्पल अभी आपको लगता है 180 डेज आर नॉट इनफ टू मेक A4 शीट फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक, तो आप क्या कीजिए, हर यूनिट में से 10 to 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही सीट्स बना लीजिए, बाकी आप बुक से ही कवर कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव्स भी कर लीजिए। 10 to 15 मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट डायनेमिक और जो बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं बट ऑब्वियस हैं, आने ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनके आप A4 शीट्स बना लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड यू शुड हैव A4 शीट्स आपके पास जरूर होने चाहिए, ठीक है। तो प्री का जो एग्जाम है उसका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए कि डीप नॉलेज होना चाहिए हमें सब्जेक्ट मैटर का, करंट अफेयर्स भी थोड़ा देखना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले लीजिए, 1 वर्ड 1 लाइनर वाली बुक कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, 3 और 4 ऑब्जेक्टिव बुक्स बना लीजिए। इट इज जस्ट टू क्वालिफाई, वाउ टू ड्रेन फुल एनर्जी, मैंने ये लिखा है कि आपको 50% से ऊपर नेट मिल जाएगा और एक ठीक ठाक अमाउंट पे आप अगर परसेंटेज सॉल्व कर लेंगे तो आप ERS मेंस के लिए भी क्वालिफाई हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा केवल ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व किए जा रहे हैं, मींस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है।
Okay, now mains 300 marks है, 25 question 5 marks, 10 question 10 marks and 5 question 50 marks. So you should have a very good subject matter knowledge. Writing skills में focus कीजिए. That's why I am saying again and again, make A4 sheets, makes your note in your own handwriting. So handwriting से बनाइए, accuracy आपकी बन जाएगी, speed आपकी बन जाएगी, because इट्स अ वेरी लेंथी पेपर. आई मस्ट टेल यू, आपका कोई क्वेश्चन छूट गया तो आप वापस आके उसको नहीं कर पाएंगे, एक फ्लो में करना होगा ये क्वेश्चन. ठीक है, रीडिंग ओनली बुक्स विल नॉट हेल्प. केवल पढ़ते रहेंगे, लिखेंगे नहीं, राइटिंग स्किल्स पर फोकस नहीं करेंगे, सो यू विल नॉट एबल टू प्रोड्यूस गुड आंसर्स. राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी ही होगी. वन वेरी गुड आइडिया विच आई वॉन्ट टू गिव यू इज प्रिपेयर इन ग्रुप्स. Don't prepare in isolation. You should prepare in groups. For example, you divide and distribute chapters among your group. For example, if your group have 5 friends, so divide 5 units or divide one unit into 5 topics. You give one topic to each one of them and give them 3 days, and then you meet and then you share your notes to each other, so that in one go you are covering 5 units. So divide and distribute chapters, combine notes and meet on Sundays. Mock test कीजिए senior से, batchmate से मिलके. So this is very important suggestion which help you immensely for pre as well as mains. Current affairs में थोड़ा रेगुलर रहिए, अपडेट कीजिए. विजन 2050 रिपोर्ट, ICR एनुअल रिपोर्ट पढ़ लीजिए. थोड़ा सा करंट अफेयर से भी प्री में क्वेश्चन आते हैं. एंड अल्टीमेटली above all you have to maintain a motivation. और फेयर भी थोड़ा होता है, बट थोड़ा सा फेयर अच्छा होता है. इट विल नॉट लेट यू ओवर कॉन्फिडेंट. सो मोटिवेशन भी होना चाहिए, थोड़ा फेयर भी होना चाहिए. इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है. यू हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन रिसर्च, योर क्लासेस एंड प्रिपरेशन. सो इफ यू आर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कैलेंडर बनाइए. सो इफ योर टॉपिक्स 3 टॉपिक्स यू हैव टू कवर टुडे, 3 टॉपिक्स आपने कर लिए. सो फ्री टाइम में आप अपना एंजॉय कीजिए, कुछ और काम कर लीजिए. सो डोंट रीड आवर्स वाइज कि हमने इतना घंटे पढ़ लिया. नो, रीड्स टारगेट वाइज, टॉपिक वाइज, और पूरा कैलेंडर बनाइए. टिक करते हुए चले जाइए, नोट्स कंपाइल करते हुए चले जाइए, बाद में याद करने के लिए आसान हो जाएगा. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन. सो दीज आर द वीडियोस व्हिच आर अवेलेबल इन माय चैनल. आई हैव गिवन द सेपरेट लिंक in my description box. So how to crack the interview, I have made a very important video. How to solve ARS mains question, though it has made with the preference of the earlier pattern जहाँ 240 का होता था, but still the tips which I have given, it is also relevant for 300 marks question paper. So ये वीडियो आप देख सकते हैं. प्री एंड मेंस की फुल स्ट्रेटजी मैंने बनाई थी, ये वीडियो भी आप देख सकते हैं. नोट्स मेकिंग कैसे करना चाहिए, पूरा हमने एक वर्कशॉप पंतनगर यूनिवर्सिटी में कराया था, उसका वीडियो हमने डाला है, ये आप देख सकते हैं. ऑब्जेक्टिव को कैसे सॉल्व करना चाहिए कि सो दैट नेगेटिव मार्किंग मेरी कम हो और मेरे अच्छे नंबर आए, इस पे एक वीडियो हमने बनाया था, ये भी आप देख सकते हैं. सो ऑल द लिंक्स ऑफ दीज वीडियोस आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. दीज आर द मॉड्यूल्स व्हिच आई हैव मेड एक्सक्लूसिवली फॉर एक्सटेंशन स्टूडेंट्स. यू कैन रेफर टू दीज मॉड्यूल्स. I will upload more modules soon. So I hope हमने यहाँ तक कवर कर लिया. स्ट्रेटजी भी आपको बताती है. So I hope you like this video and you have got an idea for NET, ARS, SMS and STO exam. आपको पता चला होगा कि स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, कैलेंडर कैसे बनाना है, टॉपिक्स को सब टॉपिक्स में कैसे डिवाइड करना है, कैसे अचीव करना है ये गोल को. एंड आई होप इट इज यूजफुल फॉर नॉट ओनली फॉर सोशल साइंस स्टूडेंट बट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ एग्रीकल्चर. और मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि ये जो टाइम है इसको यूटिलाइज कीजिए, मोटिवेशन बनाए रखिए. सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में मोटिवेशन. हम आज पढ़ लेते हैं, 2-3 दिन तक लगातार पढ़ते रहते हैं, लेकिन तीसरे चौथे दिन से हमारी सिंसियरिटी कम हो जाती है. सो अपने को ओवर बर्डन मत कीजिए पढ़ाई से, बल्कि आप पढ़ते रहिए, अच्छा लिखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए. नोट्स मेकिंग के लिए मैं बहुत जोर देता हूं, हमेशा देता हूं, और हम सब लोगों ने जो सक्सेस प्राप्त किए हैं वो नोट्स के बलबूते बहुत किए हैं. तो आज भी हम अपने नोट्स को ही पढ़ के क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं. सो नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई सजेस्ट यू टू मेक नोट्स नॉट फॉर ऑल द टॉपिक्स बट एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपने सीनियर से पूछ लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उन पे नोट्स जरूर बना लीजिए A4 शीट, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया. आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड ऐसे ही मोटिवेशन के साथ बने रहिए चैनल पे. अगला वीडियो भी जल्दी ही इस चैनल पे आपको मिलेगा. सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे मोटिवेटेड, स्टे ब्लेस्ड एंड प्रिपेयर वेल. सो नमस्कार.